My dear student, in previous lecture I have discussed agency by express agreement, agency by implied agreement, and in implied agreement agency by estoppel, agency by holding out, and agency by necessity. Presumption of agency between husband and wife I shall discuss in this lecture. हार्डी का एक स्टेटमेंट था कि जब तक लोग घरों में रहेंगे पत्नी जरूरी चीजें खरीदेगी, पति बिल का पेमेंट करेगा, यानी पत्नी एजेंट के रूप में काम करेगी पति के। The relationship between husband and wife is also that of principal and agent. The husband is treated as a principal and wife is an agent, but there is some difference in their relationship as a principal and agent. The agency relationship between an husband and wife may be wife living with her husband, wife living apart from her husband, wife living with her husband, पति के साथ रहने वाली पत्नी। A wife living with her husband has the implied authority to buy the articles of household necessity. पति के साथ रहने वाली पत्नी घर की जरूरी चीजें खरीद सकती है, उसके पास implied authority होती है। In other words, where the husband and wife are living together, the wife is presumed to be the agent of husband for the purposes of buying household necessities. Thus, the husband is bound to pay the bills for the household credit purchase made by his wife. However, the husband is bound to pay for the credit purchase made by his wife only if the following conditions are satisfied. Number one, the husband and wife must be living together. पति और पत्नी साथ साथ रहते हो. The husband and wife must be living together in domestic establishment of their own, and the wife should be in charge of the domestic establishment. पति और पत्नी एक डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट में रह रहे हो और पत्नी उस डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट की इंचार्ज हो, यानी जनरली जो है घर का सामान पत्नी खरीदती हो और डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट हो उनका। The wife must purchase the articles suited to the style in which the husband chooses to live. और पत्नी ने वो चीजें खरीदी हो जो पति की हैसियत में हो। When all the conditions are satisfied, the wife is presumed to be the agent of his husband. ये तीनों जो हमने कंडीशन बताई यदि वो पूरी हैं तो पत्नी पति की एजेंट होगी और पत्नी द्वारा खरीदे गए सामान के लिए पति लायबल होगा। And the husband is bound to buy the acts of his wife. However, the husband can escape the liability by proving any of the following. पति अपने बचाव में जो है तीन चार चीजें में से प्रूव कर देता है तो बच भी सकता है बिल देने से, प्रिंसिपल नहीं माना जाएगा पत्नी का। He is number one, he has especially forbidden his wife to buy goods on credit, and the tradesman was also especially forbidden to supply the goods on credit to his wife. पहले क्या बचाव का आधार कि पति ने पत्नी को मना कर रखा था कि वापस खरीदा और ट्रेडमैन से भी कह रखा था, मना कर रखा था कि उसकी पत्नी को उधार न दे। The wife was already supplied with sufficiency of the articles in question. जो चीजें उसने खरीदी हैं वो ऑलरेडी उसके पास थी। The wife was supplied with sufficient fund to purchase the necessary. वाइफ को जरूरी चीजें खरीदने के लिए ऑलरेडी
ऑलरेडी पति द्वारा पैसा दिया गया था पर्याप्त। द गुड्स परचेज वर नॉट नेसेसरी, जो चीजें खरीदी हैं वो जरूरी नहीं है। अभी हमने बताया कि डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट पति और पत्नी के बीच एजेंसी स्थापित करने के लिए जरूरी है। जैसे ए और बी एक साथ डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट अपना उनका है, वो रह रहे हैं। बी पत्नी है, उसने कोई उधार खरीदा है, कपड़े खरीदे हैं बच्चों के लिए, अपने लिए, घर के लिए जरूरी चीजें खरीदे हैं। यहाँ जो उसका हस्बैंड है उसका पेमेंट करने के लिए बाउंड है। लेकिन यदि जो डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट अपना ओन का नहीं है तो जो है पति जो है लायबल नहीं होगा। एक केस है डेवनहाम और मिलन 1880 का, हाउस ऑफ लॉर्ड द्वारा डिसाइडेड है। ए जो है एक मैनेजर में होटल का जो है होटल में एक मैनेजर था, पत्नी भी वही मैनेजर के रूप में, प्रबंधिका के रूप में काम करती थी। वो एक होटल के एक कमरे में, वहाँ उसी होटल में एक कमरे में रहते थे। उनका कोई जो है डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट आप वो नहीं था। वाइफ ने कुछ कपड़े उधार खरीदे थे, जिससे सप्लायर से जिससे खरीदे गए थे, दुकानदार ने जब पेमेंट पति से मांगा, जो उसकी पत्नी ने खरीदे थे उसने देने से मना कर दिया। कोर्ट जाने पर भी जो है कोर्ट ने कहा कि हस्बैंड लायबल नहीं होगा, क्योंकि उनका अपना ओन डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट नहीं था। सेकेंड सर्कमस्टांसेस है वाइफ लिविंग अपार्ट फ्रॉम हस्बैंड, पति से अलग रहने वाली पत्नी। Sometimes the husband and the wife are living separately. The wife may be living apart without any fault on her part. दो परिस्थितियां इसमें भी हो सकती हैं कि एक तो पत्नी अपनी इच्छा से अलग नहीं रह रही, उसको ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हुई हैं कि उसको अलग रहना पड़ा है, विवश होना पड़ा है। दूसरा वो अपनी इच्छा से अलग रह रही है। और सी में भी लिविंग अपार्ट फ्रॉम विल any without any justification, where the wife is living apart without any fault on her part, then she is legally entitled to receive maintenance from her husband. जहाँ उसे जो है अलग रहने के लिए विवश होना पड़ा है, वहाँ पत्नी से मेंटेनेंस के लिए मांग कर सकती है ना। If the husband does not provide her maintenance, the wife has an implied authority to purchase the necessaries of her life. ये मना करता है पति, तो पत्नी जो है जरूरी चीजें खरीदने के लिए अथराइज है और पेमेंट करने के लिए हस्बैंड उसका बाध्य होगा। In such cases, the husband cannot escape liability by forbidding his wife from purchasing the goods on credit. इसमें वो जो आधार है बचने के, वो भी नहीं कि उसने मना कर रखा था और जो है या ट्रेड्समैन को भी उसने मना कर रखा था कि उसकी पत्नी को उधार न दिया जाए, ऐसी परिस्थिति में भी उसे देना पड़ेगा। However, if the wife is living apart of her own will and without any justification, जहाँ पत्नी बिना किसी जस्टिफिकेशन के अपनी इच्छा से अलग रह रही है, then she is not legally entitled to receive maintenance from her. तो न तो उसको मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल है और ऐसी स्थिति में वो हस्बैंड जो है वो की एजेंट भी नहीं मानी जाएगी। However, in England, the implied agency of the wife had been abolished by English Matrimonial Proceedings and Property Act 1970. इंग्लैंड में जो है इंग्लिश मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग एंड प्रॉपर्टी एक्ट द्वारा एजेंट हस्बैंड एंड वाइफ के बीच जो एजेंसी होती है उसको रिपील कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। कहने का मतलब इंग्लैंड में जो है अब पत्नी पति की एजेंट नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट जो है मोड था एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। एन एजेंसी में आल्सो कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस द लॉ ट्रीट्स वन पर्सन एज एन एजेंट ऑफ अनदर। कुछ परिस्थितियों में जो है लॉ जो है किसी व्यक्ति को दूसरे का एजेंट ट्रीट करता है। इन पार्टनरशिप एक्ट, एवरी पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज एन एजेंट ऑफ द फर्म फॉर पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। हर पार्टनर फर्म के बिजनेस के पर्पज के लिए फर्म का एजेंट होता है। यानी एक्ट वो करता है
पूरे पार्टनर जो है या पूरी फर्म जो है लायबिल होती है। मोरओवर ही इज आल्सो एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स ऑफ द फर्म, दूसरे पार्टनर्स का भी वो एजेंट होता फर्म के। एंड thus the firm and the other partners are bound by the acts of the partners which are done by him in course of business of the firm। एक पार्टनरशिप एक्ट के लिए सेक्शन 18 एंड 19 है पार्टनरशिप एक्ट की, पूरी फर्म पूरे पार्टनर्स लायबिल होते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी एंड सी वर पार्टनर्स ऑफ फर्म व्हिच वाज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द शू मेकिंग। एक जूता बनाने वाली फर्म के जो है ए बी सी तीन पार्टनर हैं। ए bought some raw material from D on credit for the purpose of the firm। ए ने उधार जो है डी से कुछ फर्म के पर्पज के रॉ मटेरियल खरीदा है। द रॉ मटेरियल वाज bought in name of the firm, और फर्म के नाम से खरीदा है। इन दिस केस द फर्म इज बाउंड बाय द परचेज मेड बाय ए। यहाँ पर ए द्वारा जो परचेज किया गया है फर्म उसके लिए लायबिल होगी और सारे पार्टनर भी उसके पेमेंट के लिए लायबिल होंगे। Thank you very much.